most merciful. Today, you people will learn about rise of novel. Since we are talking about 18th century, and in 18th century we'll be talking about the writer like novelists like Daniel Defoe. We'll be discussing about Henry Fielding, Richardson. So these were the novelists who are known as earlier writers. See, they especially help while bringing novel in English language. So they write and they have taken certain things from the Aristotle, Plato. So if we talk about Henry Fielding, he said he has given his own theory about the novel. He says he says Aristotle has written in his Poetics that there is a comedy. There is a part of the comedy it has been lost. Since we find in the work of the Aristotle Poetics, we find in the Poetic the work of tragedy, but certain part of the comedy it was lost. He says that I have found a new genre in novel. So how I found, I have infused tales, I have infused stories in my work, and he has written Joseph Andrew. So Joseph Andrew, he says that I have created a new genre in literature. And what kind of genre he has introduced? He says I have written comic epic in prose. My work is a comic epic prose. So comic epic prose means it's just a comic epic, and in this epic I have infused, I have entered, I inserted some tales in my work. So he has included tales like Lenora tales. He has included Wilson tales. He has included other tales. So these tales are just in the form of the epic. Epic is a long narrative point, but whenever it is a mock epic, the fighting will be like that. People are fighting with the bodkins, people are fighting with the needles, people are fighting with the lipsticks, people are fighting with the eyes, winking of eyes. So as you have seen in mock epic, especially in Belinda's epic, especially is in Alexander Pope's epic. So he has written the Rape of the Lock. So in Rape of the Lock, we have seen the people are fighting with the needles, lipstick, and they are fighting with the bodkin pins, and this is what a trivial kind of fighting. But in a serious epic, when we've got a serious epic like Homer work, Odyssey, Iliad, Virgil's work, Aeneid. So in these works, serious kind of fighting is over there. People are fighting with a kind of sword, and they are in the battlefield. They are fighting. These work were known as serious epic. Talk about the Milton epic, serious epic. But now we will see, especially novel, it's a long epic prose. So he has written long epic prose. He has introduced that, I have introduced new genre. So novel is a kind of long prose. So it's not just like a short story. So now today we'll discuss rise of the novel. Today we'll discuss Johnson age, because we've covered Alexander Pope age. We have covered Dryden age. They were the classical writer, and how they created this sham kind of, or you could say like a fake kind of classical work. So this work is not like the classical writer like the Ovidian writers, writer like the Homer or Virgil, or like the classical work of the Latin Greeks writer. This work is just fake. It's not like them. They tried to imitate and copy the classical writer, but they couldn't do that. Their work was so serious and grand enough. They tried to imitate and copy and translate their work, but they could not meet the requirement. So whenever you translate one thing to another thing, it is totally changed. Even sometimes it becomes ridiculous. So the same way we see people are going to translate the work of the ancient writer, but they could not meet up the standards. So here we'll see that this age, especially when there is a lot of development. So let's see some points. In the age of the Dryden, in the age of Johnson, in the age of Alexander Pope, especially new classical age, lot of development is over there. So no, England is coming from the monarchy to the democracy. People are traveling toward democracy. So when people are traveling toward democracy, lot of changes are occurring. So changes are like that. People are getting liberal.
People are getting secular. People are demanding their liberty, freedom of inquiry, freedom of speech, enlightenment. This age, especially Johnson age, later part of the 18th century, this age is also known as enlightenment, age of reason, age of inquiry, so age of transition. So people are just changing their attitudes. There is new kind of manners. So there is a materialism, there is urbanizations of England, there is a stir on men. So especially age of Dryden, and their ages are related to each other. इनकी एज को देखें तो इनकी एज में कुछ चेंजिंग्स आई थी. क्या चेंजिंग आई है कि अब लोग जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, नए मटेरियलिज्म उनमें ज़्यादा आ रहा है. वो क्या हो रहे हैं? दे आर गेटिंग मटेरियलिस्टिक इन देयर एटीट्यूड, दे आर डिप्रेस्ड. वो क्या है, जब इंसान पैसे के पीछे दौड़ता है तो वो डिप्रेस भी हो जाता है. पोएट और ड्रामेटिस्ट जो थे वो मेन फिगर थे इस एज के. ड्राइडन की एज की बात कर रहा हूँ. सो और इस एज में पोएट्स और ड्रामेटिस्ट को सेम समझा जाता था. यानी जो बंदा ड्रामेटिस्ट है या ड्रामा लिखता है उसे क्या समझा जाता था? ही इज अ पोएट, ही इज अ पोएट एज वेल. और आपको पता होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड प्ले. इस तरह ड्राइडन ने जो वर्क किया उसमें ड्राइडन ने इवन डिफ्रेंशिएट किया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड प्ले. उसने अपने वर्क के अंदर बताया कि क्या एक ड्रामा के अंदर क्या फर्क होता है और एक प्ले के अंदर क्या फर्क होता है. प्ले, उसने कहा कि प्ले वो होता है, इट इज टू बी इनेक्टेड ऑन द स्टेज, बट ड्रामा इज जस्ट लाइक इन द रिटन फॉर्म, बट वेन एवर it is played on the stage in the form of script, in the form of total cosmetic things, everything is included and is being played, it is a play. तो प्ले तब बनता है जब वो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होके वो एक प्रॉपरली प्ले के लिए नेक्टेड फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है. दिस इज अ प्ले. ड्रामा इन द रिटन फॉर्म जो आपने देखा हुआ है. प्ले व्हेन इट इज इनेक्टेड एंड ऑल स्टेज एंड एक्टिविटी एंड वट एवर यू गिव रोल टू द सर्टन कैरेक्टर्स इन इज इन्वॉल्व, इट इज नोन एज प्ले. ये है दोनों में फर्क. कमर्शियलिज्म जो थी वो आम हो रही थी. ठीक है, मैन, चूंकि आदमी जो थे, लोग जो थे वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए थे. लोग, सोसाइटी डेवलप फॉर्म में बन रही थी, तो उस वक्त लेडीज जो हैं वो नई नई तरीकों से एक्सपेरिमेंट कर रही थी. मतलब मॉडर्निटी आ रही थी तो वो लेडीज को इंस्पायर करते. लोग जो थे एक वैल्यू से शिफ्ट हो रहे थे दूसरी वैल्यू की तरफ. यानी पीछे क्या थी, एज इतनी डेवलप नहीं थी, लोग इतने डेवलप नहीं थे, लेकिन जब वो डेवलप हो गए तो वो आपने देखा होगा जो नए नए लोग अमीर होते हैं तो वो नए नए, मतलब उनके शूज़, उनके मोबाइल, उनकी गाड़ियाँ, उनकी वॉचेस और उनकी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं. तो फिर लेडीज़ जो हैं वो बाज़ का अजीबोगरीब किस्म का फैशन करती हैं. तो ये लोग क्या कर रहे थे, फिर उन लोगों को, लेडीज़ को, उनकी रिफ्लेक्शन दे रहे थे अपने लिटरेचर में. कहते हैं लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. बाज़ ने कहा लिटरेचर इज अ हैमर विद विच वी मेड सोसाइटी. लिटरेचर is what you can guide other. Literature should not be for the deductive purpose. Literature should not be any propagandist function. इसको प्रोपोगेंडिस्ट नहीं होना चाहिए, इसको स्पेसिफिक फंक्शन नहीं परफॉर्म करना. इट इज अ इंडस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे ऑस्कर वाइल्ड कहता है. तो इस तरह कुछ कहेंगे आर्ट फॉर आर्ट से, कुछ कहेंगे फॉर लिटरेचर फॉर टीचिंग से, कुछ फॉर मोरालिटी से, कुछ पॉलिटिकल आइडिया से. तो लिटरेचर को हर बंदा जो है वो क्या कहेगा, जो वो अपनी कोई थीरी देगा उसके बारे में, कोई ना कोई वो देगा. अगर वो कोई क्रिटिक हुआ या कोई वो साथ साथ इस तरह का फिलासफर हुआ तो कुछ बताता जरूर है. मैन इन अ सोसाइटी नॉट अ प्लेटोनिक सोसाइटी. इससे पहले प्लेटोनिक आइडिया को फॉलो किया जा रहा था कि कोई आइडियल स्टेट है, हम उधर ट्रेवल कर रहे हैं और हमने अल्टीमेटली फाइनल वहां पे जाना है. जो रिलीजियस एज है, आपने देखा होगा, religions tell people that you are not for here, you are made for somewhere else. So especially in Renaissance age and onward, people started trying to explore the world. They started exploring world. What is in the world? Religion. This universe is for the man. So why don't we explore man, his potential, his energy, his work, his ideas? So man is a universe himself.
जैसे जॉन डन ने कहा था कि अगर एक इंसान मरता है, वो फॉर होम द बेल टॉल, एक उसकी पोएम है, उसने कहा फॉर होम द बेल टॉल, तो उसका मतलब ये है कि बेल टॉल का मतलब होता है जब किसी की डेथ होती है तो क्रिश्चियन चर्च के अंदर एक बेल बजाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए बजती है जिसकी डेथ होती है उसके, जैसे हमारे लान होता है। तो वो कहता है कि जो बेल बजती है चर्च के अंदर किसी की डेथ पे, यू शुड नॉट थिंक दैट इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, रादर व्हेन वन पर्सन इज डाइड, our part is also died with it, with him, since we are part of the universe, since we are part of humanity, and when one person is died, according to John Donne, our one part is also, my part is also died, मेरा भी कोई हिस्सा जो मुझे फील होता है कि मैं भी कहीं ना कहीं मर गया हूं, मैं भी कहीं ना कहीं, मेरी भी डेथ हो गई, आधी हो गई है, पूरी नहीं हुई थी। तो जब चूंकि इंसान एक, देखें ये पूरी यूनिवर्स है, उसमें से एक चीज़ भी अगर उससे जुदा होती है तो वो यूनिवर्स जो है वो मुतासर होती है। तो कहता है ह्यूमैनिटी क्यों नहीं ये सोचती कि अगर कहीं पे कोई सफरिंग हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, तो वी शुड थिंक दैट वी आर आल्सो डाइड। तो मैन जो है, मैन इन सोसाइटी, नॉट इन प्लेटोनिक सोसाइटी। और इंसानों, फिर वो क्या डिस्कस करेंगे, जो इंसान इस दुनिया में मौजूद है इसको डिस्कस करेंगे। ड्राइडन की एज में, जॉनसन की एज में, अलेक्जेंडर पॉप की एज में, इसको कहा जाता है न्यू क्लासिकल एज। और स्पेशली लेटर पार्ट ऑफ दिस एज, स्पेशली न्यू क्लासिकल, जो लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी की जो एज है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन की एज, इनलाइटनमेंट की एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। एज ऑफ जॉनसन का मतलब ये है कि जॉनसन उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर था। एडमंड बर्ग था, ठीक है, एडमंड बर्ग था, इसके अलावा यहाँ पोएट ओलिवर गोल्डस्मिथ है, उसके अलावा दीगर और भी पोएट हैं, खुद ये सैमुअल जॉनसन है। लेकिन इन सारों में लीडिंग और डोमिनेट जिसने किया था उसका नाम है जॉनसन, सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है किनको, मेटाफिजिकल पोएट्स को। मेटाफिजिकल पोएट चूंकि उससे पहले आए थे, तो वो उनको कहा, अब्राहम कोले की उसने वो बायोग्राफी लिखता था। सैमुअल जॉनसन जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुआ, लिख लीजिए, इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ लिखवा दूँ फिर हम आगे चलते हैं। सैमुअल जॉनसन 1709 में पैदा हुआ है और इसकी डेथ हुई है 1784 में, यानी 1709 में पैदा हुआ है और 1784 में इसकी डेथ हुई है। ये वो वाहद राइटर है जिसने अपना एपिटैफ जो है खुद लिखा है। एपिटैफ का मतलब लिखें, जब डेथ किसी की होती है तो कुछ पोएट उसके ऊपर कमेंट करते हैं, उसको कहते हैं एपिटैफ। इसने अपना एपिटैफ खुद ही लिख दिया था कि डेथ हो रही है, बीमार हो रहा है, वीक हो रहा है, तो उसे पता चला कि वो वीक हो रहा है, तो उसने अपना खुद ही लिख दिया अपनी डेथ पे जो लिखते हैं, पोएटिक वर्क लिखते हैं, वो उसने खुद ही लिख दिया एपिटैफ कि भाई अब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँ। इसका सबसे क्लोज फ्रेंड था, नाम लिखें उसका, जिसको इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ का भी एपिटैफ इसने लिखा था, जॉनसन। मैं थोड़ा सा रीकैप करूंगा, उसके बाद इसकी एज पे आऊंगा। और इसकी एज जो है वो जानी जाती है ओवरऑल 1744 से लेके 1784 का जो एरा है या जो टाइम है, इसको डोमिनेट किया है हमारे पोएट ने, राइटर ने, बायोग्राफर ने, लिक्सिकोग्राफर ने। और इसको कहते हैं कि ये एक ड्रामेटिस्ट था, एक पोएट था, बायोग्राफर था, लिक्सिकोग्राफर था, डिक्शनरी राइटर भी था। लिक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, ही इज नोन एज लिक्सिकोग्राफर। Lexicographer, he is working as a lexicographer. His father was a bookseller, and lot of booksellers, they come to him and they request him, why don't you write dictionary like the French dictionary? We want to compete them. So they paid him for this, and he started writing dictionary. It took several years to write dictionary. He wrote dictionary, and this dictionary is still recommended and idolized, and people like it. इसकी डिक्शनरी में क्या ऐसी खास बात थी कि लोग इसकी डिक्शनरी को लाइक करते थे? सैमुअल जॉनसन ने रेफरेंस दिए थे, पिक्चर्स दी थी, हवाले दिए थे, कोट्स दिए थे। अगर वो एक वर्ड लिखता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इसकी डिक्शनरी जो है बड़ी डिमांडेड है। अच्छा, इस एज में क्या हो रहा था? अर्बनाइजेशन हो रही थी इंग्लैंड की अर्बनाइजेशन हो रही है। स्टायर ऑन मैन, दिस एज शोज स्टायर ऑन मैन। चूंकि अर्बनाइजेशन है, मैन सेंटर्ड वर्ल्ड बन गई है, यानी रिलीजन सेंटर से कहाँ आ गए हैं लोग, सेकुलरिज्म आ गया, लिबरलिज्म आ गया,
डेवलपमेंट आ गई है, प्रोग्रेस आ गई है, लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई हैं, तो लोग वर्क कर रहे हैं अब इंडस्ट्री में, ह्यूमन प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, और लेडीज़ ने न्यू न्यू फैशन अपना लिए हैं, और लोगों ने भी, मैन ने, तो जो मैन इन द वर्ल्ड, people are talking about the men in the world, not talking about the men in the the people in the cosmos or the people beyond this cosmos. ये जो कॉस्मोस है, इससे यूनिवर्स से कोई बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहे थे, एंजल या सुपर नेचुरल चीज़ों की, इंसानों की बातें हो रही थी, कोई सुपर नेचुरल नहीं, क्या बातें हो रही हैं, इंसानों के ऊपर स्टायर हो रहा है। लिमिटेड ऑन द अर्थ एंड योर होम इज हियर इन दिस वर्ल्ड। लोग अब क्या आ गए हैं, अब ऊपर से रिलीजन की दुनिया से आ गए हैं कि इसी दुनिया में, इसीलिए तो अब रेनेसेंस एज में बहुत तरक्की की है इंग्लैंड ने, क्योंकि वो मजहब को छोड़ के उन्होंने कहा कि अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक जापान का था कोई, तो उसने परवेज मुशर्रफ को आई थिंक ये कहा था, कहता कि तुम लोग तरक्की नहीं कर सकते। उसने क्यों भाई, हम तरक्की क्यों नहीं कर सकते? कहते कि यार तुम इस दुनिया में की तलाश में नहीं हो, आप लोग तो किसी दुनिया कोई हेवन की तलाश में है, इसलिए आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। यानी तरक्की वो कहते हैं कि ऐसे बंदे के लिए जो एक्सप्लोर करेगा इस वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं आज का दिन गुजर जाए, कल पता नहीं हमने जीना है, यानी हम इस तरह, और ये अच्छा है, बंदे को जीना भी ऐसे चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप लोग तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि आप तो इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं। Dryden is the beginning of the classical age and Pope is flowering it. अब ड्राइडन के हाथ में जब ये आई एज तो उसने उसको प्रोग्रेस दी, डेवलपमेंट दी, वो कॉपलेट लेकर आया है, हीरोइक कॉपलेट, ठीक है, और उसने मतलब ड्रामा पे वर्क किया, ठीक है, उसने पोइट्री पे वर्क किया, और ये जब पॉप के हाथ में आई तो पॉप ने इसके ऊपर मजीद वर्क किया। Follow rules in Renaissance poet were free and can write freely. अब रेनेसेंस एज, अब जो इसकी एज में हम जाते हैं, ड्राइडन की एज में, क्लासिकल एज में, हम देखते हैं कि क्या है, यू आर बाउंड टू मेक राइमिंग कॉपलेट, ठीक है, यू गिव वैल्यूज टू द रूल रादर देन इमोशंस। जब आप रूल बाउंड पोइट्री करोगे तो आप इमोशन जो है वो आपसे दूर हो जाएंगे, पैशन जो है वो नहीं रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि आप तो रूल को फॉलो करते करते, वो कहता है देयर प्रिटी आईज रोल्स एंड कहता है चार्म स्ट्राइक द साइट मेरिट विन द सोल। जब आप हर चीज में कोपलेट बनाने की राइमिंग बनाने की कोशिश करोगे, रूल बेस पोइट्री करोगे, और ये कितना मुश्किल है रूल बेस बनाना, राइम क्रिएट करना, हीरो कोपलेट बनाना, और ब्लैंक वर्स में ना लिखना। तो शेक्सपियर के एज में हमने देखा एडमंड स्पेंसर वर्क कर रहा था, वाइट और सरे ने वर्क किया, एडमंड स्पेंसर ने वर्क किया, फिलिप सिडनी ने वर्क किया, शेक्सपियर ने वर्क किया, एलिजाबेथन राइटर्स ने वर्क किया, जॉनसन जो है इससे पहले का जो एक राइटर था, बेंजामिन जॉनसन, वो भी प्ले राइट था, बड़ा अजीम राइटर था। अब वो वर्क कर रहे थे लेकिन वो फ्रीली, दे वर राइटिंग इन अ फ्री मैनर, दे आर नॉट बाउंडेड इन राइमिंग एंड राइमिंग कॉपलेट, दे आर नॉट लाइक दैट। वो इस तरह नहीं थे, वो आज़ाद थे, वो स्टेज में आज़ाद थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को रूल बाउंड कर लिया क्लासिकल के। क्लासिकल जो इमिटेशन कर गए हैं या बता गए हैं वही स्टैंडर्ड है। अगर हम उसको मीटअप कर लेते हैं, उनके स्टैंडर्ड को फॉलो कर लेते हैं, या ट्रांसलेट अच्छा कर देते हैं, या रूल बेस बना देते हैं वर्क को, दैट वर्क विल बी गुड रादर देन टॉकिंग अबाउट आवर ओन सेल्फ। सो वी शुड कॉपी देम, वे ऑफ राइटिंग, ओविडियन स्टाइल and Homeric style, and then we should Virgil style, we should follow the other poet like Horace style। तो हमें क्लासिकल राइटर को मैक्सिमम फॉलो करना चाहिए, उनके रूल को, जो वो रूल बता गए हैं, वी मस्ट फॉलो देम, एज लॉन्ग एज वी आर फॉलोइंग इट मीन वी आर गुड राइटर। ये उनका बिलीव बन गया। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि ये इसलिए लिख रहे थे इस तरह का। जॉनसन इज नोन एज द फादर ऑफ द न्यू क्लासिकल। जॉनसन को क्या जाना जाता है कि जॉनसन जो था वो फादर था न्यू क्लासिकल एज का। ड्राइडन जो है, मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा, उसके बाद हम जॉनसन पे आएंगे ताकि आपको साथ साथ आइडियाज होते जाएं। जॉनसन, ड्राइडन जो है वो क्या है, पोइट्री एंड ड्रामा उसने किया है, क्रिटिकल उसने ऐसे लिखे हैं, शॉर्टर वर्जन्स ऑफ द ड्रामा, हीरोइक ड्रामा, एंटायर वर्क इज राइम वर्स।
जितना वर्क आपको पोप का मिलेगा, जितना वर्क ड्राइडन का मिलेगा, न्यू क्लासिकल राइटर्स का मिलेगा, वो मैक्सिमम किसमें होगा? राइमिंग कॉपलेट में। अगर ये रूल फॉलो ना करें तो वो बहुत अच्छा लिख सकते थे। मतलब इतना मुश्किल है पोइट्री को राइमिंग कॉपलेट में बांधना, दो दो के दो, दो के दो, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट दे पीपल दे हैव डन। आप पैराडाइज आप ऐसा करें कि रेप ऑफ द लॉग पढ़ें, द रेप ऑफ द लॉग, उसको पढ़ते जाएं, साथ साथ राइमिंग कॉपलेट फाइंड करती जाए, आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल इन्होंने वर्क लिखा है, इतनी इतनी बड़ी बुक्स कैसे लिख दी। Rhymes to blank verse and varying rhyming schemes, Marlowe and Shakespeare wrote freely, but Dryden and the classical poet strictly followed the rules of the classical writer. अब जितने भी क्लासिकल राइटर्स हैं, उन क्लासिकल राइटर का जो अगस्टस एज के राइटर थे, अगस्टन एज के राइटर थे, अब उन राइटर को स्ट्रिक्टली बाउंडेड हो गए हैं कि वो फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो एट एनी कॉस्ट। बट वी हैव सीन द पोएट लाइक शेक्सपियर, वी हैव सीन एडमंड स्पेंसर, वी हैव सीन मार्लो, सो दीज काइंड ऑफ ग्रेट पोएट्स एंड राइटर, they were writing in a free manner. They were not bounded to follow the rule of regulation of the ancient Greek. Rather, they write themselves. They write whatever come in their mind. Even they are writing in a blank verse, so they were free to write as much as they can. Blank verses are free. Blank verse जो है वो लिखा जाता है वो बगैर किसी रूल रेगुलेशन के, उसमें कोई मेट्रिकल लैंग्वेज और रिदम और राइमिंग स्कीम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप लिखें और उसकी ये शर्त होती है कि वो आइएम्बिक हो, और बाकी उसमें ये मेट्रिकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे शेक्सपियर करता था, आइएम्बिक बनाता था, उसको आइएम्बिक एक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस को मिलाता था, बट ही इज़ नॉट रूल बेस्ड लाइक दिस। इनकी तरह वो बाउंड नहीं था कि वो इसी को लिखे, वो ही राइट्स हिज ओन स्टाइल, उन्होंने अपने अपने स्टाइल बनाए। स्पेंसेरियन जो है स्टाइल और है, फिलिप सिडनी ने अपना स्टाइल बना लिया, और उससे पहले जो है वो पेट्रार्क जो था उसको फॉलो कर रहे थे। पेट्रार्क ने जैसे लिखा तो उसके बाद उन्होंने कुछ चेंज कर लिया उसमें, कि वो ही नहीं कि उसी को फॉलो करो। पर वो क्या मैंने बताया था आपको, वो क्या करते थे, वो ऑक्टेव 8 लाइनें ऊपर और नीचे सिस्टेट, ठीक है, ये आएगा आपको ज़रूर। वो 14 लाइन की सोनेट बनाते हैं, लेकिन ऊपर प्रॉब्लम बताता है, ये मैंने अपलोड किया है इससे रिलेटेड एक लेक्चर, वो आपने सुनना है, मैं आपको शेयर करूँगा। नीचे वो उसका सोल्यूशन बताता है, मिसाल के वो कहता है कि मेरी बिलवर्ड जो है, मतलब एडमंड स्पेंसर ने अपनी बिलवर्ड के लिए लिखा कि मैंने उसका नाम लिखा वेव्स के, मैंने वो सी शोर पे अपनी बिलवर का नाम लिखा, वेव ने मिटा दिया, फिर मैंने लिखा, फिर मिटा दिया, फिर मेरी बिलवर बोली, यानी वो इस तरह 8 लाइनें पूरी करता है। फिर कहता नीचे मेरी बिलवर बोली, वो कहने लगी कि तुम पागल हो, क्यों लिख रहे हो भाई मेरा नाम, मैं एक मॉर्टल हूँ, मैंने मरना है। कहता तुम मॉर्टल नहीं हो, आम लोग जो हैं वो मर जाएं या उनकी डेथ हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बहुत अजीम हो, तुम मेरी बिलवर्ड हो, मैं अपनी पोइट्री के जरिए तुम्हें एवर लास्टिंग बना दूंगा, तुम्हें मैं इमॉर्टल बना दूंगा, तुम मेरी पोइटिक आर्ट के जरिए तुम हमेशा जिंदा रहोगे। देखिए शेक्सपियर ने भी ऐसा कुछ लिखा है। तो अब ये इस तरह नीचे ऊपर प्रॉब्लम उठाता है, नीचे उसका आंसर देता है। They write far from the common thoughts of the people by following the rules of the Greek. अब जब वो ग्रीक रूल्स को फॉलो करते तो बात बात इतना डिफिकल्ट बना देते कि दैट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन पीपल टू कॉम्प्रीहेंड, बिकॉज दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द कॉमन पीपल्स थॉट। उनके बियॉन्ड, उनके कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड चले जाना, डिक्शन ऐसा यूज़ कर देना, कॉम्प्लेक्स बना देना उसको, मतलब उसके अंदर आप राइमिंग स्कीम बनाते बनाते उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हो कि वो आम बंदे की समझ में नहीं रहता। दे वर डिमोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। देयर कॉन्टेम्प्रेरी सन ऑफ फ्लैक्नो। अब मैक फ्लैक्नो पोएम है इसकी, मैक फ्लैक्नो के अंदर वो अपने कॉन्टेम्प्रेरी के ऊपर स्टायर करता है। स्टायर मतलब कि हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं पोएट, या तो वो अपने राइवल्स जो हैं या उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टायर कर रहे हैं। मेन वर्क उनका क्या होता था कि उस वक्त के उनके जो राइवल्स थे उनके ऊपर स्टायर करते थे, यानी उस वक्त के जो राइवल थे उनके ऊपर स्टायर करते थे।
या वो किसी लेडी को पकड़ लेते उसके ऊपर स्टाइल कर देते, या वो किसी आदमी को पकड़ लेते उसके ऊपर स्टाइल कर देते, यानी मेन मतलब ये उनका होता, वो स्टार कर देते। बाज़ का तो वो ऐसे लोगों के ऊपर स्टार करके लिख देते कि जिनको कोई जानता ही नहीं था। अगर तो वो किसी को कोई जानता है तो उसके ऊपर स्टार हो रहा, तो डेफिनेटली अब मैं इस वक्त ऐसे बंदे पे किसी पे स्टार कर दूं कि जिसको सारे लोग जानते हों, ठीक है, मतलब कोई मुझसे बहुत बड़ा कोई ट्रेनर है तो मैं उसको स्टार करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं उस पर स्टार करूँगा, लोग मुझे भी जानने लग जाएंगे उसकी वजह से। अब जैसे शेक्सपियर सबसे बड़ा पोइट था, तो शेक्सपियर को बहुत बड़े दूसरे बड़े बड़े पोइट्स को उसने छोड़ दिया। टी एस इलियट ने किसको पकड़ा? टी एस इलियट ने स्टार किया हैमलेट के ऊपर, और हैमलेट में भी, यानी शेक्सपियर के वर्क में भी सबसे बड़ा वर्क हैमलेट, जिसको लोग बहुत लाइक करते थे इंग्लैंड में। तो इस तरह बाज़ का लोग चीज़ वो पकड़ते हैं स्टार करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, जिसको लोग ज़्यादा, और बाज़ का ये इतने यानी इस तरह के पोइट थे कि वो ऐसे बंदों पे लिख देते जिनको कोई जानता ही नहीं, किसी आजू बाजू पे लिख दिया, स्टार कर दिया। क्रिएटेड टू हिट हार्ड हिज राइवल, सो मेन कॉज टू राइट पोएट्री फॉर द सैटिरिकल पर्पस to hit hard their rivals, their contemporary writers, to star them, to criticize them. So they are writing in a critical language. They are making star. उनके ऊपर स्टार कर रहे हैं, उनको हिट हार्ड स्टार कर रहे हैं उनके ऊपर, एंड अपोनेंट पीपल्स। Poetry addressed to the contemporary society, wrongdoings, domestics and public life. Dryden limited himself to the rhyming verse. तो ड्राइडन और इस तरह के पोइट्स ने एक इनके अंदर मसला था, प्रॉब्लम था कि इन्होंने उस वक्त तो राइमिंग स्कीम में अपने आप को लिमिटेड कर लिया और स्टायर तक अपने आप को लिमिटेड कर लिया। जो एग्जैक्ट आर्ट का मकसद होता है वो फोर्थ होने लगा इसमें। जब अब टू मच ये चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाती हैं। रेनेसेंस लिटरेचर जो है दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो वो बड़ा ओपन था, ब्रॉड माइंडेड था, ब्लैंक वर्स का वर्क था, लोग ड्रामा में वर्क कर रहे थे, पोएट्री में वर्क कर रहे थे, ट्रेजेडी लिख रहे थे, और इवन के उस दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई लिटरेचर के अंदर। और उस वक्त की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। They had good times and writing. Dryden and Pope are image of the new classical poetry. They followed self-imposed rule. यानी ये self-imposed rule जो है इन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए थे, और ये कहते थे कि अगर हम, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हम इमिटेट करेंगे क्लासिकल राइटर को तो दे आर गुड राइटर, हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है कोई अच्छा बुरा और करने की, हमें बस डेवलपमेंट करनी है। जितनी ज़्यादा इमिटेशन करते जाएंगे क्लासिकल की उतने ज़्यादा अच्छे राइटर बन जाएंगे। ये उनका स्टैंडर्ड था, मतलब ये उनको यही चाहिए था। आगे देखिएगा, These drama and poetry remained limited to the styles in subject, style and form. अब उन्होंने कैसे लिमिटेड किया अपने आप को कि उन्होंने अपने वर्क के अंदर, यानी एक तो उन्होंने स्टाइल, सब्जेक्ट, यानी अपने सब्जेक्ट को, अपने स्टाइल को और अपने फॉर्म ऑफ योनरा को, लिटरेरी योनरा को क्या बना दिया, जस्ट स्टायर सेंटर बना दिया। स्टायर सेंटर बना दिया तो यानी ये उस एज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अगर वो इन चीज़ों से, एक तो सेल्फ इम्पोज रूल से निकल जाते, ठीक है, और एक क्या करते, स्टायर से निकल जाते, थोड़ा सा इसको लिमिटेड कर लेते और क्लासिकल को टू मच फॉलो ना करते, बहुत ज़्यादा फॉलो ना करते, तो ये पोएट बड़े इंटेलेक्चुअल थे। पोएट इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन इन्होंने अपने आप पे जो रूल लगा दिए, इनकी वजह से इनका वर्क जो है वो बड़ा लिमिटेड रह गया बाद में। यानी वो एक एज होती है उसमें तो वो रहा प्रोमिनेंट, लेकिन बाद में वो अपनी वक़्त खो गया। ऐसे ऑन द ड्रामेटिक पोजी, ये वर्क है ड्राइडन का, नोट कर लें, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, और इसके अंदर उसने वर्क किया है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का भी कंसेप्ट दिया है। अब ड्रामेटिक पोएजी क्या है, व्हाट इज ड्रामेटिक पोएजी? उस वक्त पोएट्री को कहा जाता था पोएजी। क्या कहा जाता था पोएट्री को? पोएजी। जैसे हमने फिलिप सिडनी कंसेप्ट ऑफ पोएजी है, ठीक है, अपॉलॉजी फॉर द पोएजी, ये पोएट्री लाइक दैट। पोएट्री एज अ पोएजी, ड्रामा वाज आल्सो पोएट्री, और ड्रामा को भी उस वक्त न्यू क्लासिकल एज में
पोइट्री ही कहा जाता था। व्हाट इज़ पोइट्री, इस वर्क के अंदर जो कि ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोजी है, ड्राइडन ने आपको बताया कि व्हाट इज़ पोइट्री, व्हाट इज़ ड्रामा, व्हाट इज़ ड्रामेटिक पोएजी, व्हाट इज़ अ प्ले। और उसने बताया इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ दैट गिव्स यू प्लेजर्स। ड्रामा की उसने क्या, उस प्ले की क्या उसने तारीफ की कि प्ले जो है ये एक प्रेजेंटेशन है लाइफ की, और जो इट गिव्स यू प्लेजर्स। इसका मतलब है कि ड्राम प्ले जो है वो प्लेजर देता है, वो प्रेजेंट किया जाता है, वो प्रेजेंटेशन है लाइफ की, जैसे लिटरेचर रिफ्लेक्शन होता है लाइफ की। उसने बड़ी ज़बरदस्त तारीफ लिखी, और ये उसने अपने वर्क में लिखा है जिसका नाम है ड्राम पोइजी ऑन ड्राम, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। अब ये ऐसे है लेकिन ये पोइट्री की फॉर्म में इसने लिखा है। टू टीच एंड डिलाइट, अब ये क्या कहता है अपनी बुक में, वही जो फिलिप सिडनी के कंसेप्ट को करता है कॉपी, कहता है ये टीच करता है और डिलाइट देता है, यानी एक तो ये लेसन देता है